This view is going to be very important. So let me go to our tab. Um, Okay. Now I'm going to CR02. We have created hydraulic press, right? So we are in a costing view now. Okay. Here we have to select one cost center. Okay. So let us understand what is the concept of cost center. So anybody aware about the concept of cost center? Yes, it is the, I would say, maybe department from where the funding or budget is allocated. Yes, you are 80% right. Okay. Shall I take an example? We are having different accounts. Okay. Suppose for your personal banking, you have your home loan account is different. Okay. You are having your salary account is different. And you have your joint account with your father or mother or with your wife, it is separate. Okay. So these are the different account. Why you create this different account? Because there is some purpose. Like your home loan account is there. What you do every month, you put some amount of money as a EMI of that home loan in that separate account. Okay. So this is some, just imagine these are the different account created for different purpose. Okay. So now try to understand. Similarly, in your company, or take an example like this. Nowadays, people are going for their village for yatra or something, right? So you know that the elder parents used to give money to the kids. Okay. Suppose you are four little brothers. Okay. You want to go to that fair and want to see something and all. So your parents give 10 rupees to every or 100 rupees to each and every child. Now one of the child is there who already consumed his 100 rupees. Now he want to get something else from the his elder brother's 100 rupees. समझ में आ रहा है आपको? सभी बच्चों को घूमने के लिए दादाजी ने 100 100 रुपए दिए हैं। और एक बच्चे ने क्या किया, सब जुलूस में गया या फिर घूमने गया, उसने अपने खुद के 100 रुपए तो खर्च कर डाले, अभी उसको दूसरे के 100 रुपए के यूज करके उसको खर्चा करना है। सो इज इट राइट? ये गलत है। राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए, Yes, बराबर है? क्योंकि हर एक yes, बंदे को 100 100 रुपए दिया है, तुम्हारा 100 रुपए है, तुम अपना 100 रुपए अच्छे से यूज करो। ठीक है? डोंट वेस्ट इट हियर एंड देयर। सो व्हाट इज दिस? Already company is giving some amount to all the department. Okay. And for that they have created one account. ठीक है? उसको एक कॉस्ट सेंटर दिया गया है। सपोज मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, सेल्स है, और आपका ऑपरेशन है एंड मेटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट है। उनको बोला भैया देखो तुम्हारा बजट है। जैसे स्वप्निल ने बोला देर इज बजट। तो उनको बोला हर एक को बंदे को 10 10 करोड़ इस साल के लिए दे के रखे हर डिपार्टमेंट को। नाउ इट्स योर जॉब कि हाउ टू यूटिलाइज दिस 10 करोड़ रुपीज। अभी क्वालिटी वाला बंदा बोला यार मुझे एक सीएमए मशीन लेनी है और मेरा जो लैब है उसको रिनोवेट करना है इस साल। सो ही इज गोइंग टू यूज दैट 10 करोड़ रुपीज फ्रॉम दैट कॉस्ट सेंटर। ओके। समझ में आ रहा है? नाउ सेल्स एंड डिपार्टमेंट ने बोला दे हैव वेरी एग्रेसिव प्लान टू डू द ब्रांडिंग एंड ऑल। सीधे हर एक इवेंट में जा रहे हैं, आईपीएल मैचेस हो रहा है तो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और आईपीएल के स्पॉन्सर में उनके 10 करोड़ चले गए पहले 2 दिन महीने में ही। अभी उनके पास पैसा नहीं, अप्रैल में उन्होंने सब पैसा आईपीएल में स्पॉन्सरशिप में दे गया, उसमें ऐड करने में डाल दिया। नाउ दे डोंट हैव मनी। So will they borrow money from somewhere? No, they are not allowed. They have budget of 10 crore. So they will use the 10 crore from there only. They cannot go and take money from a cost center of quality department or production department. No. So there is some budget and which is defined in a some particular cost center. अभी समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? What exactly I am trying to say? What is cost center? It's a financial terminology, guys. Okay, first of all, but try to understand it. यहाँ तक clear सबको? yes, सो ये कॉस्ट सेंटर है, जहाँ से वो पैसे निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे पैसे उनको उनके नाम पे खर्चा जो भी होगा वहां पे उनका एक अकाउंट है, वहां पे प्लस माइनस सब कुछ दिखेगा। नाउ
ये व्हाट वी आर टॉकिंग ओवर योर कॉस्ट सेंटर, तो ये कॉस्ट सेंटर जो है आपको, आपका कस्टमर है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो बताएगा व्हाट इज अ कॉस्ट सेंटर सुटेबल फॉर दिस। ठीक है, ये इसके लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी हम यहाँ पे हम सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम कर रहे हैं। व्हाट इज दिस सेटअप टाइम, लेबर टाइम, मशीन टाइम? दिस इज द एक्सपेंसेस मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। रेफ्रिजरेटर का जो हाइड्रोलिक प्रेस है, ये चलाने के लिए जो सेटअप टाइम लगेगा, मशीन टाइम लगेगा, लेबर लगेगा, इसके ऊपर जो भी खर्चा होने वाला है, वो खर्चा कौन से अकाउंट से जाना चाहिए? तो ये प्रोडक्शन का एक कॉस्ट सेंटर रहेगा, वहां पे ये खर्चा डेबिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? Yes. क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, देखो सेल्स वाले का काम क्या है? एडवर्टाइज करना है, ये करना है, उसके लिए उनको पैसा एक्स्ट्रा चाहिए। प्रोडक्शन वालों के लिए पैसा क्यों चाहिए? अरे मेरा नया मशीन लाऊंगा मैं, मशीन के ऊपर मैं कुछ इम्प्रोवाइजिंग करूंगा, अच्छे क्वालिटी के टेक्नीशियन लाऊंगा, उनके ऊपर मैं खर्च, समथिंग लाइक दैट दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ ये सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम जो है, इसको हमें एक्टिविटी टाइप ऐड करना है यहाँ पे। व्हाट इज एक्टिविटी टाइप? कॉस्ट सेंटर समझ में आएगा सबको? हेलो, Yes. एनी डाउट? Yes. वैजनाथ, राजेंद्र, ऋषि, स्वप्निल, ऋषि, क्लियर है सब लोग? कॉस्ट सेंटर समझ में आया? अभी इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एक्टिविटी टाइप। अभी हम क्या कर रहे हैं, सेटअप का एक एक्टिविटी टाइप भी डिफाइन करना है हमें। ठीक है, सेटअप का एक एक्टिविटी टाइप, अभी यहाँ पे मैं सबका एक ही दे रहा हूँ, तो आप ऐसा मत समझो कि एक ही दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कॉन्फ़िगर नहीं किया प्रॉपरली, इसलिए यहाँ पे मैं एक यूज कर रहा हूँ। लेकिन अंडरस्टैंड करते हुए पहले एक्टिविटी टाइप इज व्हाट इज एक्टिविटी टाइप नाउ। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो सेटअप है, let me go to the Excel. Okay, activity type. Cost center is the, पहले कॉस्ट सेंटर कंप्लीट करते हैं। कॉस्ट सेंटर इन एसएपी इज द लोकेशन वेयर द कॉस्ट आर ऑक्योर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लोकेशन मतलब एक अकाउंट है। ठीक है, कॉस्ट सेंटर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज ऑफ फॉर द कॉस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज टू कैप्चर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उनका कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना प्राइस वो मनी खर्चा कर रहे हैं, वो सब वहां पे अकाउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, दैट इज अ कॉस्ट सेंटर। नाउ व्हाट इज द एक्टिविटी टाइप? एसएपी एक्टिविटी टाइप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट आर प्रोड्यूस इन अ कॉस्ट सेंटर इन अ कंट्रोलिंग एरिया। ठीक है, अभी ये जो कॉस्ट सेंटर है, ठीक है, ये जो कॉस्ट सेंटर के अंदर हमने एक्टिविटी बोली सेटअप टाइम, तो सेटअप टाइम का एक रेट होगा। एक्टिविटी टाइप इज द रेट ऑफ दैट एक्टिविटी। वेरी सिंपल बेसिक डिफिनेशन, एक्टिविटी टाइप इज द रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। अभी आप बोल रहे सेटअप है, सेटअप क्या लिया आपका, रेट क्या रहेगा? आपका हाइड्रोलिक प्रेस है, उसको सेटअप चेंज करना है, तो सेटअप कौन चेंज करता है? आपका हेल्पर होता है वो चेंज करता है, या फिर आपका टेक्नीशियन करता है, या फिर आपका ऑपरेटर करता है? देयर आर थ्री पीपल। ओके, इफ आई हैव टू डू सेटअप, अरे क्या हो रहा है यार, इफ आई वांट टू डू सेटअप, ओके, सो हु इज द राइट पर्सन? हेल्पर, या फिर ऑपरेटर, और टेक्नीशियन? कौन करेगा? Technician. टेक्नीशियन करेगा। Techni- ओके, गुड, Okay. एवरीबडी एग्री, ये काम टेक्नीशियन का है, सेटअप चेंज करने का। हेलो, Yes. राइट एवरीबडी, थैंक यू। चलो, Yeah. नाउ मेरे पास करना है सेटअप, तो मैं इसको, तो हम इसको यहाँ पर लाते हैं। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी इज दिस, आई हैव टू डू मशीनिंग। ठीक है, मशीनिंग यानी मशीन चलाना है। मशीन कौन चलाता है, हेल्पर चलाता है या फिर ऑपरेटर चलाता है? Operator. Operator. ऑपरेटर। ओके, एवरीबडी एग्री? Yes. ओनली स्वप्निल इज सेइंग गाइस, Yeah. यस सर, नो, एवरीबडी एग्री? Yes. Yes. हाँ, ओके। और अभी लेबर जो है, लेबर का काम मैंने आपका हेल्पर का काम। ठीक है, बराबर है, लेबर है मतलब हेल्पर है वो आपका। ठीक है, जो आपको हेल्प करने वाला है सेटअप, वो मैन कॉस्ट है। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम, ये तीन एक्टिविटी रखा है।
ठीक है, सेटअप, मशीन एंड लेबर। ओके, मशीन टाइम, लेबर टाइम। अभी मुझे बताओ, मैं कुछ यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है। 1000 रुपीज पर आवर, 500 रुपीज पर आवर, एंड 100 200 रुपीज पर आवर। नाउ यू टेल मी, कौन से बंदे को कितना पैसा देना चाहिए? Technician हाँ, 100. The technician 1,000 rupees per hour. एवरीबडी एग्री, टेक्नीशियन को सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। Yes. ओके, Yeah. उसके बाद Then Operator machine operator. ऑपरेटर को, ऑपरेटर 500 per hour. उसको, ओके। अभी नाउ टेल मी व्हाई वी आर डन लाइक दिस, हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑफ यू नो दैट टेक्नीशियन वर्क इज अ स्किल वर्क। सेटअप चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार सेटअप गलत हो गया तो पूरा प्रोडक्शन आपका खराब हो सकता है। तो सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार सेटअप अच्छे से लग गया, फिर ऑपरेटर है वो अच्छे से काम करके देगा, ठीक है। वो मशीन में जॉब लोड करेगा, अनलोड करेगा। हेल्पर क्या है, एक जॉब यहाँ से उठा के दूसरी जॉब पे लेके जाएगा, कुछ स्पेनर चाहिए, ये चाहिए, हेल्पिंग करता रहेगा शॉप फ्लोर पे। तो उसका वैल्यू कम है, उसका रेट कम है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, रेट ऑफ दैट एक्टिविटी। अभी समझ में आ रहा है? सेटअप टाइप, सेटअप का एक्टिविटी टाइप, ओके, एक्टिविटी टाइप इज इक्वल टू 1000 रुपीज पर आवर। ये क्या होगा? उसका रेट ऑफ दैट एक्टिविटी। आर वी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? हेलो, एक्टिविटी टाइप Yes. का मतलब समझ में आएगा सबको? रेट ऑफ द एक्टिविटी। अभी ये कौन डिफाइन करेगा? अगेन दिस विल डिफाइन बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपका जो भी क्लाइंट है या फिर आपका जिस जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट डिफाइन करेगा भैया कि मुझे कितना कॉस्ट देना है लेबर के लिए। बराबर है? हमने इलेक्ट्रिसिटी लिया था, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बताता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा प्रोडक्शन सुपरवाइजर जाके भरेगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आएगा आपके कंपनी का, वो कौन भरेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। बराबर Yes. है? उनको Yes. मालूम रहेगा। अभी यहाँ पे हमने देखा एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, याद है हमने क्रिएट किया था कल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट है, उसका यूनिट आ रहा है आपको 8 रुपीज पर यूनिट, RX 8 रुपीज पर यूनिट। बराबर है? अभी 8 रुपए पर यूनिट है, क्योंकि आपका ये इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई, राइट? तो वो 8 रुपए पर यूनिट है, आपको सुपरवाइजर का नहीं मालूम है। सुपरवाइजर का काम ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना हुआ, उसका बिल निकाल के आओ, वो भर के आओ, वो काम उसका नहीं है। उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठा है ना, वो उसका लेजर अकाउंटमेंट भरेगा ना, इतना रुपए लॉस हुआ या फिर इतना खर्चा हुआ इलेक्ट्रिसिटी पे। तो उसके पास डेटा है, तो उसके पास रेट है उसका। तो हर एक चीज का रेट उसके पास डिफाइन है। तो ये रेट कौन देगा आपको? एक्टिविटी टाइप कौन क्रिएट करेगा? ये जो एक्टिविटी टाइप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, this will be Finance. created by your finance department and they will give these numbers to you or your सुपर यूजर, जो भी ये वर्क सेंटर क्रिएट करने वाला है, उसको ये चीजें वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? एक्टिविटी टाइप इज क्लियर? Yes. Yes. फॉर each standard activity we have assign activity type and rate of the standard activity is maintained in activity type। ठीक है, तो इसके अंदर रेट मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गए हम। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी यहाँ तक आपको समझा, तो लेट अस सेव दिस। एक्टिविटी टाइप, कॉन्फ़िगरेशन टाइप मंगा यार। पॉइंटर फॉर्मूला, ये एक्टिविटी टाइप ये कॉस्ट सेंटर को असाइन करना पड़ता है। अभी हमारे पास ये डेटा नहीं है प्रॉपर, ठीक है, तो इसलिए हम ट्रायल एंड एरर पे चल रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंस का कॉन्फ़िगरेशन है। वी डोंट हैव फाइनेंस पीपल विद अस, ओके। और हमने हाइड्रोलिक प्रेस ये क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, /N/CR03 में जाके डिस्प्ले करेंगे इसको। तो ये आपको डिफॉल्ट वैल्यूज, कैपेसिटी, शेड्यूलिंग, कॉस्टिंग सब व्यू मिलेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? व्हाट इज, हाउ टू क्रिएट वर्क सेंटर? यहाँ तक क्लियर सबको?
Yes. Yes. नाउ अगर आपको मल्टीपल Yes. क्रिएट करने हैं तो स्लैश एन CR01, अभी हमारा हाइड्रोलिक प्रेस से एक मशीन हो गया, और कौन सा मशीन लगेगा हमें? Welding machine. वेल्डिंग मशीन, Spot welding. SPOT WELD, ओके, स्पॉट वेल्ड, ओके। वर्क सेंटर कैटेगरी 00 रहेगा, प्लांट 1000। मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिक प्रेस का रेफरेंस ले रहा हूँ। याद है आपने मटेरियल मास्टर में मटेरियल का रेफरेंस लेके मटेरियल बनाया था, तो वहाँ वैसा हम कर रहे हैं, ठीक है। एंटर। हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, उसका बेसिक डेटा चाहिए, क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, शेड्यूलिंग चाहिए, कॉस्टिंग चाहिए, सब व्यू चाहिए। तो मैं कॉपी कौन कौन से स्क्रीन करना है वो देख रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। एंटर। तो यहाँ पर आएगा स्पॉट वेल्डिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, FRIDG पेज, ओके। डिफॉल्ट वैल्यूज, ओके, कैपेसिटी, शेड्यूलिंग, कॉस्टिंग एंड सेव, ओके। स्लैश एन CR03, एक बार चेक करते क्रिएट हुआ कि नहीं। स्पॉट वेल्ड, ठीक है, ओके, क्रिएटेड। सो दिस इज द वे यू कैन कॉपी एंड क्रिएट द वर्क सेंटर। समझ में आया? रेफरेंस पकड़ के कैसे कर सकते हैं, पुराना Yes. इसको कॉपी कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क सेंटर इंटीग्रेशन विद कॉस्टिंग। दिस इज Sir, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, बोलो। uh, how to search the cost center? Yesterday, maybe I have हाँ, created, but I don't remember the name. ओके। And स्लैश एन CR05 इज अ T code, CR05 is a report, okay. okay, Now study what you created, okay. So here you can go and have your work center category। आपने 000 लिया होगा, राइट? yes. आपको कुछ नाम याद आ रहा है उसका? I think free जैसा कुछ तो लिखा था. Hydraulic. एच No, no. FRGP. FR FRG press. FRG press. नहीं, एक मिनट रुक, लेट अस डू वन थिंग। एफ, RG. देखो FRG press. Third number. Third number. FDG, FDG आर हाँ लिखा, FDG. हाँ FDG FDG press. प्रेस है, ठीक है। Yes. दिस इज वन हाइड्रोलिक प्रेस का रेफरेंस B14, ठीक है, Yes. Yes. ओके। Okay. For CR05. Okay. Thank you. CR05 जो टिकट हमारा है, आगे का स्लाइड आएगा एंड में, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, Okay. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वर्क सेंटर इंटीग्रेशन विद कॉस्टिंग। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, हाउ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड इन SAP, और हाउ यू कैलकुलेट द प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, देखो। सो वर्क सेंटर, यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट सेंटर होता है, यहाँ पे वर्क सेंटर है, ठीक है। वर्क सेंटर के अंदर हमारा क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू क्यू के अंदर क्या है हमारा, एक्टिविटी है, सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज कीज है। तो वर्क सेंटर में हमें ये तीन चीजें मिलती है। यहाँ से डेटा, यहाँ इसका लिंक होता है एक्टिविटी टाइप के साथ। एक्टिविटी टाइप के अंदर क्या होता है, हमारा रेट होता है, ठीक है। पर एक्टिविटी का रेट होता है। जिस तरह से एक एक वर्क सेंटर है, तो राउटिंग के अंदर नंबर ऑफ वर्क सेंटर रहेंगे। राउटिंग का मतलब क्या होता है आपका, जैसे आप प्रोसेस प्लान बोलते हो ना, आपका प्रोडक्ट बनाने का Sequ- प्रोसेस क्या होता है, पहले ये sequence of मशीन पे जाओ, yeah. सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। पहले ये मशीन, दूसरा मशीन, ऑपरेशन मतलब मशीन। देखो, एक ऑपरेशन एक मशीन पे होता है, तो पहला मशीन पे ये, दूसरा मशीन पे, तो हर एक वर्क सेंटर ऐसे, मान लो कि 5 वर्क सेंटर है, तो ये राउटिंग के अंदर 5 वर्क सेंटर रहेंगे। उनका ऑपरेशन नंबर, उनका ये स्टैंडर्ड वैल्यूज, अगेन स्टैंडर्ड वैल्यूज हैव देयर एक्टिविटी टाइप। तो ये एक्टिविटी टाइप जो है, हर एक वर्क सेंटर का हमारे पास रहेगा, उसका रेट उससे पता चलेगा। फिर हम यहाँ पे कॉस्ट रेट निकालेंगे, कॉस्ट रेट यानी एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट, एंड देन फाइनली वी गेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह रहेंगे, उससे हम कॉस्ट निकालेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभी कंसिडर करते हैं, आई हैव टू मैन्युफैक्चर। देखो, मैं कुछ वेरी स्पेशियस लिक्विड बना रहा हूँ, ओके। मान लो कि परफ्यूम है या फिर ऐसी कोई चीज, 1 लीटर क्वांटिटी बनाना है, ओके। और इसके लिए 2 लेबर लग रहे हैं, ठीक है। अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए, फॉर विच मैन्युफैक्चरिंग 1 लीटर क्वांटिटी वी रिक्वायर 2 लेबर्स। सेटअप टाइम उसका 1 घंटे का है,
मशीन टाइम है उसका 2 घंटे का और लेबर टाइम 4 घंटे का है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर सब Yeah. लोग? ओके, सेटअप टाइम Yes. 1 घंटे का, मशीन टाइम 2 घंटे का, लेबर टाइम 4 घंटे का। नाउ फाइनेंस डिपार्टमेंट विल मेंटेन द एक्टिविटी टाइम एंड रेट, कीप इट 26 इज टी कोड, जिसके अंदर एक्टिविटी टाइप फाइनेंस के लोग मेंटेन करते हैं। उन्होंने क्या मेंटेन किया? सेटअप टाइम इज 10 रुपीज पर आवर। सेटअप टाइम बहुत सस्ता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ तो हाइड्रोलिक प्रेस होगी छोटी सी, उसको मैनुअली हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद मशीन टाइम 2 घंटे का, मशीन टाइम का रेट है 100 रुपीज पर आवर, और लेबर टाइम है उसका रेट है 1000 रुपीज पर आवर। अभी यहाँ पे क्या है, ये मैनुअल ऑपरेशन ज्यादा है और यहाँ पे स्किल लेबर की जरूरत है। ये लेबर ऐसा वैसा नहीं, स्किल्ड है, उसको पूरा का पूरा ऑपरेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मान लो कि ये काम ऐसा है जैसे जो अपना ये होता है ज्वेलर्स होता है, वो कैसा एकदम उसका जो स्किल वर्कर होता है वही काम कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। ये परफ्यूम बनाने वाला भी वैसा ही बंदा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? सेटअप टाइम, मशीन टाइम का रेट समझ में आ गया? ये उसका टाइमिंग से, 1 लीटर बनाने के लिए 1 घंटा लगता है सेटअप टाइम, मशीन टाइम 2 घंटे का लगेगा और लेबर टाइम 4 घंटे का लगेगा, ठीक है, 1 लीटर प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्लियर? उसका रेट दिया है यहाँ पे, सेटअप टाइम 10 रुपीज है, मशीन टाइम 100 रुपीज है, एंड लेबर टाइम 1000 रुपीज पर आवर है। ये भी क्लियर है Yes. एवरीबडी? Yes. नाउ हमें ऑर्डर आ गया है कि हमें 100 लीटर का क्वांटिटी बनाना है, ठीक है, और हमारे पास 2 ही लेबर है, ठीक है। तो हमारा सेटअप टाइम कितना रहेगा? 1 घंटे 1 hour. के लिए, एक लीटर के लिए 1 घंटा लगता है, तो 100 लीटर के लिए कितना लगेगा? So, हाउ मच? Same. Yeah, सेम, 1 hour only. 1 आवर ओनली, बिकॉज एक बार सेटअप कर दिया तो वो 1 लीटर बनाओ, 10 लीटर बनाओ, 100 लीटर बनाओ, 1000 लीटर बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ओके। तो सेटअप टाइम तो 1 घंटे का है, तो सेटअप टाइम 1 घंटे का है, तो सेटअप टाइम का रेट क्या है? 10 रुपीज। हेलो, 10 रुपीज रेट है। Yes. तो सेटअप टाइम का कॉस्ट कितना आएगा? सेटअप टाइम का कॉस्ट आएगा 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1 आवर इज इक्वल टू RX 10 रुपीज। Rupees. समझ में आ गया? Mhm. टाइम इंटू आवर रेट, तो इसके आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल रहा है, सेटअप टाइम का कॉस्ट आया। फिर मशीनिंग करना है, 1 लीटर के लिए 2 घंटे लगते हैं, 100 लीटर के लिए 200 घंटे लगेंगे मशीनिंग टाइम, बराबर है? Yes. तो 200 घंटे है, तो रेट क्या है मशीन टाइम का? 100 रुपीज पर आवर। 1 घंटे का 100 रुपीज है, तो 200 आवर्स के लिए हमें कितना लगेगा? 100 × 200 = 20,000 रुपीज आपका मशीनिंग टाइम हो गया। एग्रीड? Yes. ओके। Yes. नाउ आपको 1 लीटर बनाने के लिए लेबर का 4 घंटे का टाइम लगता है, मतलब 2 2 घंटे एक एक लेबर का टाइम है, तो 4 घंटे लगते हैं क्योंकि 2 लेबर है, ठीक है। तो 100 लीटर बनाने के लिए 400 घंटे लगेंगे लेबर को, 400 आवर्स विल बी लेबर टाइम। नाउ दिस इज आवर लेबर टाइम एंड रेट ऑफ द लेबर इज 1000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है आपको? तो लेबर का कॉस्ट कितना जाएगा? 4 लाख रुपीज। Now 4 lakh rupees plus 20,000 plus 10 is equal to 4,20,000 and 10 rupees is your total manufacturing cost for 100 liter perfume. Clear? Yes. Everybody clear now? concept समझ में आ रहा है? एक्टिविटी टाइप, सेटअप टाइम, इसका लिंकेज कॉस्टिंग के साथ कैसे है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर yes. Sir. एवरीबडी? गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको इंटरव्यू पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में आपको Yes. क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ कॉस्ट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ वर्क सेंटर, और हाउ प्रोडक्ट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। तो व्हाट वी हैव टू से, वी हैव टू से वी आर हैविंग अ वर्क सेंटर इन विच वी मेंटेन द एक्टिविटी टाइप स्टैंडर्ड वैल्यू की, which is having different activities or process parameter. Okay, for those process parameter, we are having the rate, or we can say activity type updated in our cost center. All these work center are linked to the routing, and through the routing we get the uh, all the data of the all work center activity and the rate. Finally we calculate the cost from with the help of these calculations. Okay, कल Yes. और अच्छे से राउटिंग को हम देखने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक वर्क सेंटर होता है, उसके अंदर हमारा एक्टिविटी सब डिफाइंड है, सेटअप टाइम, मशीन टाइम, लेबर टाइम। और कॉस्ट सेंटर होता है, उसके अंदर वो कॉस्ट सेंटर इज असाइन टू योर वर्क सेंटर, एंड इन कॉस्ट सेंटर देर आर एक्टिविटी टाइप। एक्टिविटी टाइप इज नथिंग बट द रेट ऑफ दैट एक्टिविटी। तो टाइम्स ऑफ द एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय द रेट इज गिव द कॉस्ट ऑफ द दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। और ऐसा एक वर्क सेंटर का है, एंड वी आर हैविंग मल्टीपल वर्क सेंटर इन राउटिंग,
तो राउटिंग में हर एक वर्क सेंटर का कॉस्ट आएगा, उसका समेशन करेंगे तो फाइनल टोटल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर? Yes. Clear. एवरीबडी क्लियर? वैजनाथ, राजेंद्र, ऋषि, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, ये इंटरव्यू का Yes. बहुत Yes. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेंगे ही पूछेंगे इंटरव्यू में। ठीक है, इसको एक बार ले लो। और एक एग्जांपल देख लेते गाइस। ओके, मेरे पास एक कॉस्ट सेंटर है 4420, ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पंप के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट सेंटर से यहाँ पे सेटअप टाइम, मशीन प्रोसेस टाइम, मशीन 1 मशीन 2 का रेट दिया हुआ है, $70, $80, $60, $50 या फिर $70, $80, $60, ये मेरा रेट है। नाउ वर्क सेंटर विद स्टैंडर्ड वैल्यू पैरामीटर्स एंड एक्टिविटी टाइप। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्क सेंटर जो है मेरा लेथ, इसमें सिर्फ ऊपर के जो 4 पैरामीटर, उसमें से सेटअप 1, मशीन 2 एंड प्रोसेस 1, ये 3 ही पैरामीटर यूज हो गए। बराबर है? ठीक है, ये 3 मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू की के अंदर आ रहे हैं। दिस इज माय एक्टिविटी टाइप अलॉन्ग विद द रेट इन $1। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन मुझे जो करना है, ऑपरेशन 20 परफॉर्म ऑन लेथ 2। अभी लेथ 1 में मेरा ऑपरेशन 20 है, ऑपरेशन 10 छोड़ दो, वो उसकी वो हो रहा है, मैं सिर्फ ऑपरेशन 20 का ये निकाल रहा हूँ। सेटअप टाइम 1 घंटे का है, इसका मतलब क्या है, 1 आवर इंटू सेटअप 1, सेटअप 1 इज इक्वल टू 70, तो हमारा सेटअप टाइम कितना आ गया, ₹70 आ गया। ठीक है, 20. मशीन टाइम कितना है, 10 मिनट्स पर पीस। ठीक है, हर एक पीस के लिए 10 मिनट्स है, तो सेटअप टाइम कितना है मेरा यहाँ पे, मशीन MH2 कितना है वो 50। तो यहाँ पे मिनट के हिसाब से तो आपको 1 आवर का कितना है, ₹60। तो हर एक मिनट का कितना होगा, ₹1 होगा, तो 10 मिनट का कितना हो गया, ₹10 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? ₹60 योर, सॉरी, मशीन 2 इज 50 रुपीज। 50 rupees. हाँ, तो ये 0.70 और 0.80 पैसा कुछ तो आ रहा है। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई 60, तो पर मिनट कितना आता है, तो 10 मिनट का कितना लगेगा वो। फिर लेबर कितना है, 20 है, प्रोसेस 1 लेबर कितना दिया, ₹80 का लेबर है। ठीक है, तो वापस ये 1.1 रुपीज वगैरह पर मिनट आ गया, तो 20 मिनट का कितना आएगा वो, उसका हमें कैलकुलेशन करना है। एंड देन फाइनली कॉस्ट, ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू कॉस्ट। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? Yes. एवरीबडी क्लियर? Yes. Yes. कॉस्ट पर आवर में ही रहती है ना हमेशा? नॉट डिपेंड्स ना, देखो आपका सेटअप टाइम, आप जो वर्क सेंटर क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर आपने सेटअप टाइम मिनट्स में लिखा है, तो मिनट्स में होगा ना। और ओके वहां पे जो देंगे आवरली रेट देंगे आपको। ओके। वो थोड़ी मिनट में जाएंगे, मिनट वाइज कौन रेट देगा आपको। हम क्या समझ। बोलते हैं, अभी मैंने कल आपको जेसीबी का एग्जांपल दिया, जेसीबी वाले बोलते हैं यार मैं इतना ₹500 पर मिनट लूंगा, तो लोग बोलते हैं यार मिनट के हिसाब से बात करते हैं, नहीं चाहिए घंटे के हिसाब से बात कर। फिर फाइनल जब अगर 1 घंटा 10 मिनट हो गया तो बोलता है छोड़ो यार, मोटा मोटी 2 घंटे, 4 घंटे, मैंने 4 घंटा 20 मिनट काम किया है, तो मोटा मोटी 4 घंटे का तो पैसा दे दो क्या, या फिर थोड़ा निगोशिएट करने के लोग आवरली बात करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये यस। समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आवरली रेट रहता है, इट इज नॉट मिनट बेस। तो रेट आवरली देंगे, आपका मिनट आता है 1 घंटे का ₹60, तो 1 मिनट का कितना, ₹1। सिंपल। तो यस। उसके हिसाब से 10 मिनट का ₹10, इतना ओपन कैलकुलेशन रहेगा। ओके, मूविंग अहेड। नाउ